Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of M Education, Assalamu alaikum. I say you welcome in our first class. In our first class of comparative education, I strongly hope that you will be fine and you are enthusiastically will be contributed and committed in this lecture. The learning outcomes of this lecture would be, after completing this session, students will be able to understand the concept of educational approach, make an understanding about the role of comparative education, identify trends and issues of comparative education, how can comparative education can be helpful for any country. Dear students, as you know that the definition of any subject is very important to comprehend, to understand. Comparative educationists are primarily scholars who study education in different environments in order to discover why they are, what are the way they are, and also attempts to solve educational problems. मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है बच्चों, उसकी जो एक बहुत ही मजबूत और जो जबरदस्त जो डेफिनेशन है, मैं उसको भी यहाँ पर यानी कि लिखने लगा हूं। कंपैरेटिव एजुकेशन को बोलते हैं सीई, कंपैरेटिव एजुकेशन is the comparative study of educational theories, यानी कि एजुकेशन जो थ्योरीज हैं बच्चों and practices in various countries, यानी कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं दुनिया के, उन ममालिक के अंदर जो कंपैरेटिव एजुकेशन है वो क्या रोल प्ले कर रही है और दुनिया इस वक्त किधर जा रही है। मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा, फिर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से कंपैरेटिव जो एजुकेशन है इसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। बच्चों देखें, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यानी कि जो कंपटीशन है ये बहुत ज्यादा है और उस दौर में हम रह रहे हैं। असल में दुनिया में 3 बड़े कंपटीशंस हैं एजुकेशन के लेवल पे, जो कि हमारी जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इस पे असरअंदाज होते हैं। वो 3 बड़े हैं, एक एजुकेशन सिस्टम ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, और एक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ नियर डेवलप्ड कंट्रीज,
और एक द एजुकेशन सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। दुनिया में बच्चों 3 तरह के जो मुल्क हैं उनकी जो एजुकेशन है उनके हवाले से मिसाल के तौर पर इस सब्जेक्ट के अंदर बहस की जाती है, क्या वजह है कि अमेरिका आगे निकल गया, चाइना जो है ये दुनिया को बीट कर रहा है, जापान बहुत आगे है, फिनलैंड बहुत आगे है एजुकेशन में, इसी तरह जर्मनी बहुत आगे है एजुकेशन में, सिंगापुर, हांगकांग ये मुल्क आगे हैं एजुकेशन में। वो कौन सी चीजें हैं जो कि उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरेटिव एजुकेशन, its definition, as you know dear students, that so simple to understand, to comprehend. Comparative education is the comparative study of educational theories and practices in various countries. In various countries. I would like to add by saying that comparative education attempts to use cross-national data to test propositions about the relationships between education and society, and between teaching practices and learning outcomes. One thing must be kept in mind, that there must be a balance between the teaching practices and learning outcomes. Comparative education considers the implications of comparative studies for the formation and implementation of policies in education, social, national, and international development. और जरा गौर से सुनिएगा जो चीज I would like to share you, that comparative analysis in education proved to be a useful tool in the science of education from a number of standpoints. It provides us with knowledge and information on other countries' educational systems, practices, and outputs. It also provides descriptions of other nations' lifestyles, including their educational practices. Comparative education invites contribution from associated disciplines in the fields of government, management, sociology and technology, and communications, which affect educational research and policy decision. Comparative education aims, यानी कि मतलब अगर आपको समझ आ रही है, चले मैं आसान ज़बान में आपको समझाता हूँ। इंग्लिश ज़रा थोड़ी सी मुश्किल भी है, जो कि बाज़ औक़ात इस लेवल पे समझना ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, कि बच्चों दुनिया में यूं तो बेशुमार एजुकेशन सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बहुत पीछे है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज़ वेरी फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। आवर एजुकेशन सिस्टम इज नॉट अप टू द मार्क। तो आप अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने एजुकेशन जो सिस्टम है इसको बूस्ट अप करें, इसको आगे लेके चलें, तो हमारे लिए बच्चों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना होगा कि दुनिया ने तरक्की कैसे की। हमें देखना होगा कि दूसरे मुल्कों ने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या तब्दीलियां की, दूसरे मुल्कों ने वो कौन से फैक्टर थे जिनको मद्देनजर रखा और वो लोग आगे निकल गए। हमारे पास कौन सी कमी है, क्या हमारे पास यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की कमी है, डिसीजन मेकिंग की कमी है, करिकुलम डेवलपमेंट का मसला है, या इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, या एग्जामिनेशन का मसला है, या असेसमेंट का मसला है, या मटेरियल ऑफ द करिकुलम का मसला है। जो भी है
मैं आपको एक बड़ी ना इस तनाजर में एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका के ये तनाजर में ये एक बात है और बड़ी ये मशहूर और मारूफ है। 1957 में जिस वक़्त रूस अपना पहला खलाई जहाज जिसका नाम स्पुतनिक अव्वल था उसको खला में ले जाने के काबिल हुआ, तो यकीन करें कि जो अमेरिका है, अमेरिका के तालीमी हलकों में, अमेरिका के जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक किस्म का जो जो कोराम है ये दुनिया में मच गया। जो पूरी दुनिया है, जो पूरी दुनिया है वो इस वक्त बहुत परेशानी के हालों में थी कि आखिर खास तौर पर अमेरिका कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका हमसे क्यों आगे, रूस हमसे आगे क्यों निकल गया। और यकीन करें कि मैंने जिस वक्त ये इस तनाज़ुर में आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि जो अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहां पे लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये रूस हमसे आगे कैसे निकल गया। तो इसी तरह वहां की जो पार्लियामेंट है उसमें कुछ जीरक लोग भी थे, फ्यूचरिस्टिक माइंडेड लोग भी थे। उन्होंने बोला कि परेशान होके बैठने का तो फायदा नहीं है, इसका जो सलूशन है उसकी हमें ज़रूरत है और हमारे जो माहिर तालीम है वो इसका सलूशन बता सकते हैं, जो हमारे एजुकेशनिस्ट हैं वो इसका सलूशन बता सकते हैं। तो बच्चों हुआ ये कि उस वक्त के जो बड़े बड़े स्कॉलर थे उनको बुलाया गया एजुकेशन के अंदर, जो थिंक टैंक थे, जिनमें एक नाम बड़ा मारूफ और मशहूर है वो रॉबर्ट हचन का है। तो जो रॉबर्ट हचन है जो रॉबर्ट हचन है उसको जिस वक्त बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द प्रेजेंट डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन सिस्टम। तो बच्चों उस वक्त रॉबर्ट हचन ये काफी अर्सा जिंदा रहे, ये अमेरिका का बहुत बड़ा फलासफर था। तो बच्चों इसने बताया कि कंपैरेटिवली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रूस की बनिस्बत एडवांस नहीं है। जो रूस का कंपैरेटिव एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि उसने बोला कि कंपैरेटिवली हमारे बहुत बेहतर है। हम अपने बच्चों को रेड लैंग्वेज पढ़ाते हैं, पुरानी ज़बानें पढ़ाते हैं, बच्चों को जर्नल साइंस भी पढ़ाते हैं, बच्चों को अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, बच्चों को इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाते हैं, सारा कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो बच्चे हैं ना वो तो किताबों का इतना बोझ उठाए होते हैं कि वो तो बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जबकि उन्होंने ये आगे से राय दी कि रूस के अंदर क्या होता है कि जो रूस के लोग हैं, जो रशिया के लोग हैं, वहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है रशिया का वो इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे ट्रेंड एजुकेशन है। बच्चों ट्रेंड एजुकेशन मींस एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चों की नेचर होती है, जो बच्चों की ज़ाती सोच होती है, जो बच्चों का ज़ौक होता है। देखें ना, जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको बायो बहुत पसंद है, बाज़ होंगे जिनको केमिस्ट्री बहुत पसंद है, और बाज़ होंगे जिन्हें मैथमेटिक्स बहुत पसंद होगा, बाज़ को इंग्लिश से काफ़ी शगफ होगा, और बाज़ ऐसे भी होंगे जिन्हें फिजिक्स से बहुत ज़्यादा मतलब है कि पसंद होगा ये सब्जेक्ट। आप फर्ज करें कि अगर आपको पता ये चल जाए छोटे लेवल पे ही, यानी कि चौथी पांचवी जब क्लास में पढ़ते हैं लेवल पे पता चल जाए कि इस बच्चे का जो ट्रेंड है वो तो फिजिक्स की तरफ है, या इस बच्चे का जो ट्रेंड है वो मैथ की तरफ है, तो एक सिर्फ उसको सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और उसके बाद साथ एक हल्की फुल्की यानी कि जनरल साइंस कोई भी रख दी जाए, जनरल जिसमें साइंस की मालूमात हो,
और एक जो मजहबी तौर पर यानी 3 सब्जेक्ट ही रख दिए जाएं तो जो बच्चा है ये कमाल कर लेता है, क्योंकि उसका जो मेन फोकस होता है ना वो उसका मैथ होता है या जो उसका अपना ट्रेंड सब्जेक्ट फिजिक्स है वो होता है। बाकी चलें 7 कंपल्सरी सब्जेक्ट सपोर्टिंग के तौर पे हो जाएंगे, लेकिन अक्सर जो उसका जो ट्रेंड होगा ना वो बेसिकली फिजिक्स में होगा या मैथ में। तो वो जो बच्चे हैं ना फिजिक्स या मैथ वाले फिर वो बहुत आगे निकल जाते हैं, इसलिए कि उन बच्चों को सारी जिंदगी सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। अब जरा देखें कि अमेरिका के अंदर जिस वक्त उन्होंने बोला जी कि रूस ने सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखे हुए हैं बच्चों के लिए जिनका नाम है यानी कि जनरल साइंस, उसमें सिर्फ वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी फिजिक्स और मैथ वगैरह पढ़ते हैं। यानी कि कंपैरेटिवली अमेरिका की उनका जो निसाब तालीम था बहुत हल्का था लेकिन बड़ा वैलिड था, ट्रेंड एजुकेशन थी। तो रॉबर्ट अचर ने बोला कि ज्यादा जरूरी यही है कि हम अपनी जो एजुकेशन है इसको आसान करें और इसको ज्यादा बेहतर करें। तो फिर बच्चों ये हुआ कि जो पार्लियामेंट के अरकान थे उनने बोला इस थिंक टैंक को, रॉबर्ट हचन को, कि तुम अपने साथियों के साथ मिलके हमें जो एजुकेशन पॉलिसी है वो दे दो, और गवर्नमेंट का काम है उस एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कराना। और मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें इसमें काफी अच्छे जो है ये नताइज मिलेंगे। तो बच्चों ये हुआ कि मिसाल के तौर पे जिस वक्त ये बात यानी कि उन तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची, यानी कि जो एजुकेशन के हल्के हैं तो उन्होंने उस पॉलिसी के मुताबिक अमल किया, उस पॉलिसी को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया। और यकीन करें कि इतनी जल्दी कि 1957 में, जैसा मैंने आपको बताया है 1957 में रूस खला में पहुंचता है, तो 1969 यानी ठीक रूस के 12 साल बाद यानी कि आफ्टर 12 ईयर्स यानी जुलाई 1969 यानी 69 में अमेरिका चांद पे भी पहुंच जाता है। अगर ये कहा जाए कि स्कूल के करिकुलम ने अमेरिका के बच्चों को चांद पे पहुंचाया तो ये बात गलत नहीं है। रीजन क्या थी कि रॉबर्ट हचन और जो बाकी थिंक टैंक्स थे उनका दिया हुआ वहां पे स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों के अंदर एक ऐसा निजाम दिया गया जिस पर अमल करके वो लोग आगे निकल गए। तो बच्चों मैं ये समझता हूँ कि ये कंपैरेटिव एजुकेशन की सबसे बड़ी मिसाल है। अमेरिका के अंदर कंपैरेटिव एजुकेशन की ये सबसे बड़ी मिसाल है कि अमेरिका ने फौरी तौर पे रूस को कंपेयर किया और देखा कि रूस के आगे निकलने की क्या वजूहत हैं। इन्होंने फौरी तौर पर वो पॉलिसी अपने मुल्क में नाफिज कर दी, उस पर अमल दरामद शुरू हुआ और 12 साल के बाद अमेरिका चांद के ऊपर पहुंच जाता है। आप इसकी दूसरा जरा तरफ देखें, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर 40 साल तक तो सिलेबस तब्दील नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर कई साल तक जो मालूमात पुरानी हो चुकी होती है वही अभी तक पाकिस्तान के अंदर चलती रहती है। जो लास्ट टाइम अभी आपको पता है कि पाकिस्तान में जो साइंस के सब्जेक्ट हैं इनका सिलेबस 2006 में तब्दील हुआ था। तो अभी 2006 में और 2021 से 15 साल हो चुके हैं, वही 15 साल पुरानी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, जबकि दुनिया इससे बहुत आगे निकल चुकी है। जबकि मिसाल के तौर पर जरा देखें कि बाज दुनिया में ऐसे इदारे हैं जो कि एक दिन में कम से कम 3 नई चीजें ईजाद कर रहे हैं, 3 नई दरियाफ्तें आ रही हैं, 3 इन्वेंशन हो रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं। बल्कि जापान की सोनी कंपनी के बारे में मशहूर था कि वो हर घंटे में एक नया पुर्जा ईजाद कर रही है। तो बच्चों इसलिए यानी कि वो जो यानी कि जो निसाब है बच्चों, इसलिए इसका बदलना ये बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो कंपैरेटिव एजुकेशन है ये हमें बताती है कि मौजूदा ज़माने में हमें किस तालीम की ज़रूरत है, कौन सी तालीम हम हासिल करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं ये ज़्यादा डेवलप अप होंगे और ज़्यादा ये बेहतरी होगी, और कौन सी तालीम से हमने अपने बच्चों को बचाना है। हमारे बच्चे 3-4 के होते हैं
और उनके कंधों के ऊपर जो बैग होता है वो किसी बक्से से कम नहीं होता। वो बैग यानी कि इतना होता है जैसे बच्चा जिस वक्त वो इंसान कहीं आर्मी यानी कि भर्ती होके जाते हैं ना, तो उसके घर वाले उसे साजो सामान देते हैं और बड़ा सा बैग देते हैं। इस तरह के तो रोजाना बच्चों को बैग उठाने पड़ते हैं। और इसको बच्चे से यहाँ सही तरीके से वो लिख सकते हैं भी। 8 के सब्जेक्ट के होमवर्क बच्चा कैसे आगे लिखेगा? बच्चों को एक्टिविटीज दी जाती हैं, वो सारी बच्चा कैसे करेगा? अभी बच्चा तो यानी कि ज़हनी थकावट का शिकार हो जाएगा, बोर्डम का शिकार हो जाएगा, एजुकेशन से तो बच्चा दूर भागेगा। तो लिहाजा बच्चों कंपैरेटिव एजुकेशन के जरिए हम ये सीखते हैं कि किसी दूसरे मुल्क का जो निसाब है वो कैसा है, किसी जो दूसरे मुल्क की जो समझ लें कि एजुकेशन है वो कैसी है, दूसरा जो मुल्क है उसके जो एजुकेशन थ्योरीज जो हैं उन पर कितना उनका इतलाक है या एप्लीकेशन है, वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इंग्लिश के मैदान में आगे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे जाने के लिए क्या कर रहे हैं, साइंस के जो आगे मजीद यानी कि इसके अंदर भी मुख्तलिफ डिसिप्लिन आ जाते हैं, इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, हर ब्रांच के अंदर अंदर क्या हो रहा है और हम कैसे आगे जा सकते हैं। तो बच्चों दीज ऑल थिंग्स आर ओनली मेजरेबल इन कंपैरेटिव एजुकेशन। अब ये दूसरी स्लाइड है, इसमें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन है जो कि सोदी ने 2006 में की थी, जो डेफिनेशन है। फिर उसके अलावा कैटियो यानी कि गैटियो ने जो डेफिनेशन की है। फिर दो जो विकी इंसाइक्लोपीडिया है, ये विकी इंसाइक्लोपीडिया बच्चों बहुत बड़ा एक इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड लेवल का। इसमें दुनिया की जदीद तरीन जो मालूमात है वो इसके अंदर रकम होती है। फिर इस तरह द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन इज सपोर्टेड बाय मैनी प्रोजेक्ट्स एसोसिएटेड विद यूनेस्को एंड नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज ऑफ वेरियस नेशंस। ये मैं आपको बताऊं कि ये हमारे लिए बायस नदामत भी है और बायस खुशी भी है। बायस खुशी ये है कि अगर यूनेस्को और नेशनल जो एजुकेशन मिनिस्ट्रीज हैं वो वही सिस्टम पाकिस्तान में भी लॉन्च करें जो उन्होंने अमेरिका या बाकी मुल्कों में किया हुआ है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर जो बाज़ मुल्क हैं उन्होंने दूसरे मुल्कों को मजबूर किया हुआ है, और इतना मजबूर किया हुआ है कि बाज़ मुल्क जो हैं वो बच्चों अपनी मर्जी से अपना जो करिकुलम है वो ही नहीं बना सकते। वो अपनी मर्जी से अपने मुल्क का जो निज़ाम है उसको वो तब्दील नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से अपना एमए और जो बाकी सब्जेक्ट हैं जो शोबाजात हैं उनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं ला सकते। तो बाल ये है कि मिसाल के तौर पर ये यूनेस्को जो है ये अमेरिका का इदारा है जो कि एजुकेशन की पॉलिसीज के हवाले से डिस्कस करता है। इसका भी मुख्तलिफ लोगों के साथ मुल्कों के साथ मुख्तलिफ अंदाज में एक तल्लक है इसका भी। द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ये तो मैं आगे बता चुका हूँ, यानी कि इसकी आसान डेफिनेशन जो का ने की 1994 में, आ स्टडी ऑफ 2 और मोर एजुकेशन सिस्टम, बहुत आसान तारीफ है। या स्टडी ऑफ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट अक्रॉस द एज एंड कंटिनेंट्स हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर कंट्रीज। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ए और बी जो हैं ये आप लोगों ने मुझे अभी लिख के मुझे व्हाट्सअप करनी है होमवर्क के तौर पे। एक स्टडी यानी कि ए स्टडी ऑफ 2 और मोर एजुकेशन सिस्टम्स हैं, और दूसरा ए स्टडी ऑफ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट अक्रॉस द एज एंड कंटिनेंट्स हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर कंट्रीज। बच्चों ये दो डेफिनेशन आपका होम टास्क है। ये आपने अभी, क्योंकि मेरा लेक्चर 6 बजे खत्म हो जाएगा, टाइम इज गोइंग टू जस्ट एंड, तो ये आपने मुझे लिख के ये व्हाट्सअप करना है अभी। इंशाल्लाह लेक्चर जो दूसरा ये कल मैं शुरू करूंगा। तो आज मैं यही आपको ये काम दे रहा हूँ कि आपने कंपैरेटिव जो एजुकेशन है इसके ये जो दोनों हैं ये आपने लिखने हैं और उसके अलावा इनको याद करना है। और मैं थोड़ा सा यानी कि टाइम ज़्यादा लूँगा इसलिए कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा 5-7 मिनट और लूँगा, 10 मिनट। उसकी रीज़न ये है बच्चों कि मेरा लेक्चर थोड़ा मतलब ये लेट शुरू हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ
कि ये भी मैं थोड़ी सी ना आपको, ये तो मैंने डेफिनेशन अभी लिखी है ना, कंपैरेटिव एजुकेशन इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एजुकेशनल थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस इन वेरियस कंट्रीज। तो ये जो सऊदी है उसने क्या तारीफ की है, वो परसीव्स कंपैरेटिव एजुकेशन एज ए फील्ड ऑफ स्टडी दैट अप्लाइज हिस्टोरिकल, फिलोसॉफिकल एंड सोशल साइंस थ्योरीज। यानी कि जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसके उन्होंने 3 एरियाज बयान किए हैं, तारीखी की है, फलसफियाना की है और समाजी जो साइंस थ्योरीज हैं यानी कि उनके हवाले से उसने डिस्कस की है। फिर गैटियो क्या कहते हैं, डिफाइंड comparative education as a discipline, the study of educational systems in which one seeks to understand the similarities and differences among educational systems। बच्चों बड़ा सिंपल है, इसका मतलब ये है कि कंपैरेटिव एजुकेशन ये वो एजुकेशन है जिसमें ये देखा जाता है कि जो दूसरे तालीमी निज़ाम हैं उनसे हमारी कौन सी चीज़ें मिलती हैं और उनसे कौन सी हमारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, यानी व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। जो दूसरे सिस्टम है उनसे हमारी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो ये बच्चों हमें ये पता चलता है जो कि यानी कि जो जीताओ ने यानी कि जो ये डेफिनेशन की है। आगे द विकिपीडिया defines comparative education as a fully established field of study that examines education in one country by using data and insight drawn from the practices and situation in another country or countries। इन्होंने वही तकरीबन यानी कि जिस तरह होता है ना कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क से मुकाबला होता है, किस चीज़ से मुकाबला होता है जी, लड़ाई का मुकाबला है, बम का मुकाबला है, फौज का मुकाबला है, बैटलफील्ड का मुकाबला है, जो भी है। तो एजुकेशन का दूसरे मुल्क से जो मुकाबला होता है इसको भी आप कंपैरेटिव एजुकेशन कह सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये जाना जाता है कि जो दूसरे मुल्क का जो निज़ाम है उससे हमारा निज़ाम कितना मिलता है और कितना मुख्तलिफ है। और तीसरी चीज़ जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों ने तरक्की की एजुकेशन के मैदान में तो उनका एजुकेशन मैदान किस तरह का है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं इसमें चेक की जाती हैं, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस और तीसरी चीज़ स्टेप्स दैट आर यानी कि दैट आर टेकन टू मेक डेवलपमेंट इन एनी कंट्री। द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन ये तो यूनेस्को ने तारीफ की है। तो बच्चों अभी जो एडियानका जो है उन्होंने तारीफ की है, डेफिनेशन उसके जो कंसेप्ट हैं ये 2 हैं। तो ये बच्चों आपने होमवर्क के तौर पे मुझे अभी ना आपने ना भेजने हैं। ए स्टडी ऑफ 2 और मोर एजुकेशन सिस्टम्स, ए स्टडी ऑफ हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट अक्रॉस द एजेस एंड कंटिनेंट्स हैज इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन पर्टिकुलर कंट्रीज। और बच्चों तीसरे नंबर जो बात है वो ये है कि मेरा कंपैरेटिव एजुकेशन के ऊपर ये नया पॉइंट मेरा अपना चैनल है, आपको पता ही है, उसके ऊपर ये लेक्चर है और बड़ी अच्छी यानी कि मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी के साथ मैंने यानी कि ये चीज़ शेयर अभी करने लगा हूँ कि मैंने तकरीबन 90 से ऊपर वीडियो आज दिन तक शेयर की हैं। उन 90 वीडियो में जो कंपैरेटिव एजुकेशन की वीडियो है इस पर सबसे ज़्यादा मेरे व्यूज़ आए हैं। तो यानी कि आप ये नया पॉइंट पे देख भी सकते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन पे मेरे व्यूज सबसे ज़्यादा हैं। तो आपने जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इसको अभी आपने देखना है कि कंपैरेटिव एजुकेशन में मेरे 3-4 लेक्चर हैं, उनमें एक लेक्चर ऐसा बच्चों कि जिसके ऊपर व्यूज कम से कम 1300 से ज़्यादा हैं। तो ये बच्चों आपने देखना है और वो भी मेरा लेक्चर उधर से भी सुनना है, तो आपको मजीद यानी कंपैरेटिव एजुकेशन के हवाले से पता चल जाएगा। और आपने फिर मुझे बताना भी है कि क्या आपने मेरा कंपैरेटिव एजुकेशन जो लेक्चर है ये यूट्यूब से सुना है कि नहीं सुना। आपने या पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन, उसके लेक्चर सामने आ जाएंगे। तो या वैसे भी आप बीच में मेरी जब या पॉइंट पे जाएंगे तो उसके वीडियोस के ऊपर क्लिक करना तो मेरी सारी वीडियो सामने आ जाएंगी, उसमें आप जो कंपैरेटिव एजुकेशन है इस पे लेक्चर सुन सकते हैं। और आप देखेंगे वहाँ पे कि कम से कम मेरा हर 1400 यानी कि इसके ऊपर जो व्यूज़ आने हो चुके हैं। तो ये लेक्चर मेरा बहुत यानी कि पाकिस्तान में या आगे पीछे हिंदुस्तान में पाकिस्तान वगैरह में सुना गया है। तो आप यानी कि ये सुन सकते हैं, उसके अंदर आपको इंशाल्लाह और मजीद मालूमात मिलेगी। ओके, तो फिर आज का लेक्चर अभी ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह आज का जो हमारा पहला लेक्चर है कंपैरेटिव एजुकेशन का, ये मुकम्मल हुआ। तो हमारे इंग्लिश के आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं और इसका कंपैरेटिव एजुकेशन का 1 ही हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कल 2 इसके भी दूं और 2 इंग्लिश के मुकम्मल करूं। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज। ये जो डेफिनेशन मैंने बोली हैं ये दोनों आपने लिखे मुझे व्हाट्सअप करनी है, और लेक्चर रात को सुन के मुझे आपने सुबह बताना है कि आपने वो सुना है कि नहीं सुना। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। पापा ने भी कितने लेक्चर दिए हैं? 4 दे दिए हैं अभी।